Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. Students, I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th and its lecture 8th. Students, today's subtopics are chemical properties of carboxylic acids and then uses of the carboxylic acids. Beta. Students, in case any problem, you can mail me. My mail ID is on your screen, beta, and you can also WhatsApp me, beta. My WhatsApp number is also on the screen. Now, students, let's start with the chemical properties of carboxylic acids. बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ योर टू पार्ट्स बेटा. वन इज योर alkyl group or aryl group beta. Is that clear? Depending upon the carboxylic acid beta, whether it is aliphatic or aromatic, and then second part is your carboxyl group, or you can say carboxyl group. Now just see beta, here this is a ethanoic acid here. Now this CH3 is the methyl group, that is some alkyl group beta. That is the first part of this carboxylic acid beta, and second part is your this functional group, that is your carboxyl group beta. Now similarly here this is aromatic carboxylic acid beta. Now here this is a phenyl group beta here, that is a aryl group here, clear, and this carboxyl group is there. So we can say carboxylic acid जो है that consists of your two parts beta. One is your alkyl or aryl group and other is your functional group, that is your carboxyl group. लेकिन बेटा अगर फर्दर हम देखें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वन इज योर कार्बोनिल ग्रुप बेटा, इज दैट क्लियर, एंड अदर वन इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एंड दैट अपॉन कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज जो कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, COOH. अब बेटा since this carboxyl group जो है that is having your two other, that is the combination of your two other functional groups, so it means this carboxyl group will show the properties of carbonyl groups बेटा, और hydroxyl group की भी ये property show करेगा बेटा. So we can say this carboxyl group बेटा that is expected to show the properties of both these groups बेटा. Is that clear? Now beta, reactions involving the cleavage of OH bond. बेटा OH bond के जब हम cleavage करते हैं carboxylic acids के, clear, so that is showing that the carboxylic acids are acidic in nature beta. So acidity beta, so this acidity we can discuss when we react these carboxylic acids with the metals or alkalis beta. And beta, ये जो carboxylic acid है, they evolve the hydrogen gas when we react it with the electropositive metals, clear, and they form the salts. Even with the alkalis, they react beta to give the salts of the carboxylic acid in the same way as phenols. ठीक है बेटा, जैसे आपने अल्कोहल्स और फिनोल्स में जब किया बेटा कि फिनोल्स दे आर एसिडिक इन नेचर, और आपको फिनोल को जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते तो आपको क्या मिलता था बेटा, हाइड्रोजन गैस was evolving that time also बेटा. ठीक है, so in the same way बेटा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके क्या करेंगे, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दे विल इवॉल्व. लेकिन बेटा अब फिनोल जो है बेटा, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो दैट विल नॉट इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद दीज कंपाउंड्स बेटा, बिकॉज दीज आर योर वीक बेसिस, क्लियर. लेकिन ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे विल रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट्स, और यू कैन से बाइकार्बोनेट्स रादर, या जनरली हम कहें बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ ही क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे, और दे विल इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश द फिनोल फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा, क्लियर. सो मीन्स ये जो रिएक्शन रहेगा बेटा आपका एसिड का किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ, that is just used to detect the
क्या प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोक्सिल group in the organic compounds beta. So we can say this reaction is used to detect the presence of carboxyl group in the organic compound beta. Now beta, just see here, this is some carboxylic acid and it is reacting with the sodium metal here, clear, and it is giving you the sodium salt of this carboxylic acid beta. ठीक है, sodium salt of your carboxylic acid, it is going to give you here beta with the evolution of this hydrogen gas beta, that is showing its acidic behavior. So here this acid is reacting with your this base beta, again it is giving you the salt of this acid and water is the byproduct here beta. Or here when this acid is reacting with your sodium bicarbonate, it is giving you the same salt here beta, that is sodium salt of your carboxylic acid, and carbon dioxide will be evolved over here beta with the water. Is that clear? So beta, now कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, ये क्या करते हैं, पानी में जब हम डालेंगे तो दे विल डिसोशिएट टू गिव द हाइड्रोनियम आयंस एंड कार्बोक्सिलेट आयंस ये दे देंगे. क्लियर? अब नाउ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमने इसको पानी में डाला बेटा, क्या दिया इसने, हाइड्रोनियम आयन दिया. क्लियर? तो मीन्स इट इज गोइंग टू लूज दिस प्रोटोन ओवर हियर. क्लियर? जब इसने प्रोटोन लूज किया तो क्या दिया इसने बेटा, हाइड्रोनियम आयन दिया, और क्या दिया, कार्बोक्सिलेट आयन दिया बेटा. क्लियर? एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन जो है बेटा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. क्लियर? हाउ इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो दैट इज डिलोकलाइज्ड हियर, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द डबल बॉन्ड ओवर हियर. क्लियर? एंड दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू दिस ऑक्सीजन बेटा, एंड इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन and double bond between this carbon and oxygen beta. So these are the two equivalent resonating structures of the carboxylate ion beta. Clear? And these equivalent structures are more stable because beta negative charge is here on this oxygen as well as on this oxygen beta. तो means electronegative atoms के ऊपर ही negative charge है, that's why they are more stable beta. आपने जब resonance plus one में पढ़ा होगा बेटा, तो उस टाइम आपने किया होगा कि कौन से स्ट्रक्चर जो है, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, दे आर मोर स्टेबल बेटा. मोर द स्टेबल स्ट्रक्चर बेटा, मोर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा. सो बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें आपका नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है बेटा. क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के ऊपर होता है. अगर इससे उल्टा हो बेटा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के ऊपर है और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बेटा, दे विल बी लेस स्टेबल. सो बेटा, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन जो है, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है, दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है बेटा. इट मीन्स दे आर मोर स्टेबल बेटा, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स as well as they are your more stable. That's why they are contributing more to this resonance hybrid structure beta. Clear? That's why we can say this carboxylic acid जो है, that is going to give you the stable carboxylate ion beta. ठीक है, after losing the proton. That's why it is your acidic in nature बेटा, जो हम इसमें काफी डिस्कस करेंगे बेटा आगे. अब बेटा यहां हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखें ना बेटा, प्लस वन में आपने जैसे पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो बेटा यहां प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन, दिस इज अ प्रोडक्ट हियर. कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, दैट इज अ प्रोडक्ट ओवर हियर. तो इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बेटा, दैट इज ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन, और यू कैन से दिस कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन बेटा. इज दैट क्लियर? सो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन बेटा. क्लियर? सो बट सिंस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड बेटा, क्लियर, सो लेट्स से दिस वाटर इज इन एक्सेस, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहां ऑलमोस्ट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी. सो जब हम इस वाटर की कंसंट्रेशन और इसके इक्विलिब्रियम को लें बेटा, सो दिस विल गिव राइज टू द न्यू कांस्टेंट, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, एंड दैट इज इक्वल टू योर क्या बचा यहां, हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन बची बेटा. क्लियर? सो हियर इफ यू सी this Ka is directly related to the concentration of this hydronium ion beta. More the concentration of hydronium ion, more is the value of Ka beta.
more is the acidic behavior of the carboxylic acid. So beta, we can compare the acidic behavior of any acid beta in terms of your this Ka value beta, but it is more convenient to express the strength of the acid in terms of the pKa value beta, clear, rather than that of your Ka value. और ये pKa कैसे रिलेटेड है बेटा Ka के साथ? pKa जो है बेटा दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, क्लियर. सो इट मीन्स pKa is inversely related to the Ka beta. More the value of Ka, less is the value of pKa, क्लियर. सो जितनी कम pKa की वैल्यू होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बेटा उस एसिड की. सो लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, मोर इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड बेटा. सो बेटा अब ये जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl इज देयर, H2SO4 इज देयर, नाइट्रिक एसिड इज देयर, इनकी जो pKa की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. जैसे यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दे रखी है बेटा दैट इज -7 बेटा, क्लियर. सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. इज दैट क्लियर? जबकि जो pKa की वैल्यू बेटा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की है दैट इज ऑल्सो लो बेटा हियर, दैट इज 0.23. तो इट मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड के साथ आपका क्या लग गया, मीन्स एसिटिक एसिड के जो हाइड्रोजन है ना तीन, CH3 COOH, तीनों की तीनों हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दी बेटा. और फ्लोरीन इज मोर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा, क्लियर. अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो उसका एसिडिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा. सो बेटा इट मीन्स दिस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है बेटा बीइंग हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस pKa इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड बेटा. ना बेटा जो बेंजोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, अगर हम इनकी pKa की वैल्यू देखें बेटा तो बेंजोइक एसिड की बेटा 4.19 है और आपका एसिटिक एसिड की कितनी है, आपकी 4.76 है. अब इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा बेटा कि किसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है. सो दिस इज अ मोर एसिडिक इन नेचर, दैट इज अ बेंजोइक एसिड बेटा एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर एसिटिक एसिड. सो दैट्स व्हाई दिस बेंजोइक एसिड इज strong acid as compared to that of your acetic acid as it is shown here by the pKa value beta. Is that clear? पहले भी कहा कि lower the pKa value more is acidic behavior beta. So now beta ये भी बात किया हमने कि smaller the pKa value stronger is the acid, means more is the tendency to lose the proton beta. और बेटा यहां हम कह सकते हैं कि जो आपके strong acids हैं they have the pKa value less than 1. लेकिन बेटा ऐसे एसिड जिनकी pKa की वैल्यूज है 1 और 5 के बीच में है बेटा दे आर कंसिडर्ड टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा. इज दैट क्लियर? और जिनकी pKa की वैल्यू बेटा 5 से ज्यादा है और 15 से कम है बेटा वो क्या है, दे आर योर वीक एसिड्स. और जिनकी वैल्यू बेटा 15 से भी ज्यादा है दे आर योर एक्सट्रीमली वीक एसिड्स बेटा. अब बेटा ये जो pKa की वैल्यू है कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट कि लोअर द pKa वैल्यू बेटा स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. इज दैट क्लियर? ना बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वी कैन से दे आर योर वीकर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मिनरल एसिड्स. ठीक है, क्योंकि मिनरल एसिड में pKa की वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा. इज दैट क्लियर? लेकिन ये अल्कोहल और फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. क्लियर? अगर हम इनकी pKa की वैल्यू जो है कंपेयर करें बेटा तो इसमें हम मैं जाना नहीं चाहता. क्लियर? ओके. नाउ जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेटा वी कैन से दे आर अमंग अस द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? नाउ बेटा अभी जैसे कहा मैंने कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर अमंग अस द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और दूसरा बेटा जो फिनोल्स हैं, जैसे आपने अल्कोहल और फिनोल में पढ़ा होगा बेटा कि फिनोल जो है दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बेटा. और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको प्रॉपर्ली लर्न ही कर लें. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन लर्न देम बेटा, लर्न देम बेटा.
देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। तो बेटा अगर हम इनको अरेंज करें तो आपका आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एंड अल्कोहल में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम कौन हुआ? फिनोल बेटा। इज दैट क्लियर? और उससे कम कौन हुआ? दैट इज अल्कोहल बेटा। सो वी कैन सी हियर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर अमंगस्ट द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। ओके बेटा, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल्स। ओके, अब ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? वी कैन एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्या कार्बोक्सिलेट आयन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की आयनाइजेशन से बनेगा बेटा, और फिनॉक्साइड आयन जो आपका फिनोल के से जब आपका ये प्रोटॉन देगा बेटा तब बनेगा। इज दैट क्लियर? सो जब हम इनकी दोनों की फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनेट की आयन की जो आपकी स्टेबिलिटी और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे देन बेटा यू विल फाइंड कि जो आपके कार्बोक्सिलेट आयन्स हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर फिनॉक्साइड आयन और यू कैन से फिनेट आयन। क्लियर? वो कैसे बेटा? अभी अगर हम वन बाय वन देखें। ओके बेटा, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका क्या करता है, आयनाइज करता है और आपको क्या देता है? कार्बोक्सिलेट आयन देगा और प्रोटॉन देगा। क्लियर? तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। कौन? कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज स्टेबिलाइज्ड बाय द टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे? अभी पीछे हमने डिस्कस किया बेटा कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन हियर। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल बेटा। क्लियर? जैसे यहां भी देखें बेटा, अगर आप यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आयनाइजेशन हो रही है तो दैट इज गिविंग यू दिस कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? और प्रोटॉन दे रहा है दैट इज गिविंग यू दिस हाइड्रोनियम आयन ओवर हियर। सो हियर सी दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑन दिस ऑक्सीजन बेटा। क्लियर? तो दैट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन हियर। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, वन ऑफ द लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 3 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नॉट शोन ओवर हियर। सो दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड बेटा। Clear? So this negative charge is delocalized, it means from this oxygen to this oxygen here. So this electron pair will shift to here, will form this pi bond here, and this pi bond will shift to this oxygen beta, will form the lone pair over here. So 3 lone pair यहां हो जाएंगे बेटा। अदरवाइज यहां कितने हैं? 2 lone pair हैं, that is not shown over here. Clear? और यहां नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा। अब ये क्या है? ये दोनों ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? क्यों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओवर हियर, दैट इज ऑक्सीजन ओवर हियर। दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन बेटा। क्लियर? सो इट मींस दीज आर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल बेटा। इज दैट क्लियर? और दे विल इक्वली कंट्रीब्यूट टू दिस रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा। इज दैट क्लियर? Now, since this carboxylic acid is giving you the stable carboxylate ion upon losing this proton beta, तो it means this is your more acidic beta. अब हम अगर फिनोल की बात करें बेटा, क्योंकि हमने फिनोल से इसको कंपेयर करना है, ये तो हमने सिंपल बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बेटा। अब बेटा अब मैं बात करता हूं फिनोल की बेटा। जो आपका फिनोल है बेटा, इसका ये क्या देगा अपॉन आयनाइजेशन? प्रोटॉन देगा बेटा और फिनॉक्साइड आयन देगा। और ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा बेटा, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हम पाएंगे कि देयर आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनमें क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कार्बन बेटा। अगर आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो आप पाएंगे कि आपका नेगेटिव चार्ज एक तो ऑक्सीजन के ऊपर है एक स्ट्रक्चर में, और बाकी में क्या है आपके बेटा? नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम बेटा, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इट मींस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट resonating structure. You can say these are your non-equivalent
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो आपका रेजोनेंस है बेटा फिनॉक्साइड आयन में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज इट इज इंपॉर्टेंट इन द कार्बोक्सिलेट आयन बेटा। अब सी बेटा, ये नाउ दिस इज फिनोल हियर, अपॉन गिविंग दिस proton beta, it is giving you this phenoxide ion, so negative charge is on this oxygen here beta. Now this negative charge is delocalized throughout this ring beta. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया यहां, क्लियर, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां बन गया इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। नाउ नेगेटिव चार्ज यहां से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, सी दिस इज डबल बॉन्ड हियर। सो नेक्स्ट जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन दे आर शिफ्टिंग टू योर दिस कार्बन बेटा, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टिंग टू बिटवीन दिस कार्बन एंड इज गोइंग टू फॉर्म दिस पाई बॉन्ड हियर बेटा, यहां पाई बॉन्ड बना दिया इसने, और ये अगला पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग टू दिस कार्बन बेटा एंड इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज हो गई है, क्लियर। और अल्टीमेटली ये वाला कहां शिफ्ट कर जाएगा बेटा, यहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज फिर से इसमें मींस ये फिर से ये वाला स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन जो ये आपका पाई बॉन्ड होगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होगा, यहां नहीं बनाया बेटा, क्लियर। सो यहां हम देखें बेटा, तो आपका जो ये कार्बन एटम है जहां नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन एटम है जहां ये कार्बन एटम है जहां नेगेटिव चार्ज है, और ये जस्ट सी हियर, चलिए मैं अलग अलग स्ट्रक्चर पे बता देता हूं नेगेटिव चार्ज कहां कहां है। एक यहां है कार्बन बेटा, एक यहां वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे। सो मींस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो भी कार्बन है, इज दैट क्लियर, दैट इज हैविंग योर नेगेटिव चार्ज, इट मींस, और ये कार्बन क्या है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मींस दे आर योर लेस स्टेबल बेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट मच टू द क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा, इट मींस दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, क्लियर, एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आर इंपॉर्टेंट हियर, क्लियर। सो वी कैन से दिस phenoxide ion is not that much stable as compared to the carboxylate ion beta. So carboxylate ion ज्यादा stable होने की वजह से बेटा that is easily formed, and that's why the carboxylic acid जो है that is more acidic as compared to that of your phenol. See here ये phenol के structure है, but this is not the concern for the time being बेटा, so I'm not going to do, clear। लेकिन बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि explain the acidic behavior of the phenol, is that clear? Yeah, you can say why phenol is acidic in nature. So बेटा आपको इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करना होगा, लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। नाउ बेटा जस्ट सी हियर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर, ये वही जो हमने अभी किया बेटा, क्लियर। और ये आपके फिनोल जो आपका फिनॉक्साइड आयन दे रहा है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां कार्बोक्सिलेट आयन दे रहा है, क्लियर। सो इन्हीं की स्टेबिलिटी यहां हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर से बेटा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने डिटेल में कर चुके हैं। अब सी बेटा, अब यहां सिंपली लिखा है जैसा जो भी मैंने अभी बोला बेटा, कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिलोकलाइज्ड ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है बेटा, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिलोकलाइज्ड हियर बिटवीन दीज ऑक्सीजन एटम्स हियर बेटा, ठीक है। लेकिन जो आपका फिनॉक्साइड आयन है बेटा, उसमें क्या है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है दैट इज लेस इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड हियर, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर है और आपके बाकी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है, तो इट मींस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आयन दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर दिस वन बेटा, मींस दे आर योर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर carboxylate ions, you can say, clear। That's why carboxylic acid is more acidic as compared to that of the phenol beta. So carboxylic acid, अब वही बेटा जो अभी मैंने बोला वही चीज यहां लिखा है होगा बेटा। So that carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion. So carboxylic acids are more acidic than the phenols beta. So beta, now effect of the substituent groups beta on the acid strength of the benzoic acid. Now beta,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और वो कैसे बेटा? बाय स्टेबलाइजिंग द दिस कॉन्जुगेट बेस। बेटा इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे कौन? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्यों कैसे करेंगे? बिकॉज देयर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज हियर बेटा। ठीक है, मोर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस बेटा। तो मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इजिली इट इज फॉर्म्ड बेटा, तो मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो अगर मैं यहां देखूं अब वट एवर इज रिटन ओवर हियर, सो बेटा अभी मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो इंक्रीज करते हैं आपके एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बेटा। और वो कैसे? बाय स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। और वो कैसे होती है बेटा? थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन कैसे होगी? बाय इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका क्या होगा? नेगेटिव आई इफेक्ट रहेगा बेटा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। क्लियर? और रेजोनेंस इफेक्ट्स की वजह से बेटा। क्लियर? और उसकी वजह से क्या होगा बेटा? जब इसका स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की बढ़ेगी बेटा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा, तो उसकी Ka की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस Ka इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? सो सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं दे इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं बेटा दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और वो कैसे? बाय डिस्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस बेटा। कॉन्जुगेट बेस कौन से होते हैं बेटा? जिसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो डिस्टेबलाइजिंग कैसे रहेंगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जब अटैच्ड हैं, इज दे क्लियर? सो कॉन्जुगेट बेस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना बेटा उसका ऑक्सीजन के ऊपर, दैट विल बी इंटेंसिफाइड। क्लियर? वो इंक्रीज करेगा मींस बेटा, दैट्स व्हाई दिस कॉन्जुगेट विल बी डिस्टेबलाइज्ड हियर। ठीक है? सो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? जो Ka की वैल्यू हो कम हो जाएगी और आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? तो आपके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं बेटा they are going to decrease the acidic behavior of the carboxylic acid। और वो कैसे? by destabilizing this conjugate base बेटा। क्लियर? ठीक है? और वो कैसे होता है बेटा? by the intensification of this negative charge on this oxygen बेटा। hope students this is clear। यहां दे रखा है हमने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड बेटा। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा तभी तो आपको ये देगा। लेकिन जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है बेटा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां इंक्रीज करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इट विल नॉट लूज दिस प्रोटॉन इजिली बेटा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। सिंपल ना बेटा। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं या मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है बेटा, इसको हम अगर हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर चलें, क्लियर? जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में आपने +1 में किया होगा बेटा कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है बेटा, दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बेटा। सो बेटा हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर अगर हम चलें बेटा, तो जैसे मान लिया ये आपके प्राइमरी अमाइंस हैं, सेकेंडरी अमाइंस हैं, इज द क्लियर? सो मींस सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस हैं। क्लियर? और आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप है बेटा, ये आपका OR है, दैट इज अल्कोक्साइड हियर, दैट इज सम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज देयर बेटा। क्लियर? एंड देन योर दिस फिनाइल ग्रुप इज देयर बेटा, एंड दिस एल्काइल ग्रुप इज देयर। यू नो दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इन सभी ग्रुप ऑफ एटम्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन से कम है। क्लियर? सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेटा। सो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी जब क्लियर किसी भी कार्बोक्सिलेट आयन के साथ होगा तो वो क्या करेगा? उस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिड स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देगा बेटा? ये वीक कर देगा। इज दे क्लियर? सो वेन एवर
these electron donating groups are attached to the, is that clear? Any carboxylic acid beta, so they will destabilize the carboxylate ion so formed upon ionization of the carboxylic acids beta. Is that clear? That's why they will weaken the carboxylic acid beta. So simply we can say electron donating groups or electron releasing groups जो है बेटा, they destabilize the carboxylate ion and weaken the acid beta. और जबकि बेटा अगर हम X ले यानी हैलोजन बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता is that clear? That is more beta. Electron attracting tendency that is more as compared to that of hydrogen or this CHO or COR beta, and then this sulfonic acid beta group beta SO3, and then this COH and this COOR. These different groups beta, clear, of the atoms or these different functional group beta, they have the tendency to withdraw the electron more as compared to that of this hydrogen beta. That's why they are said to be your electron withdrawing groups beta. और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा क्या करेंगे बेटा, जब भी प्रेजेंट होंगे, क्लियर, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और वो कार्बोक्सिलेट आयन जब देगा तो उस कार्बोक्सिलेट आयन को क्या कर देंगे, ये स्टेबलाइज कर देंगे बेटा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे अभी हमने पीछे कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा ये ऑक्सीजन के ऊपर, किसकी ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ऑक्सीजन के ऊपर, उसको वो क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा बेटा बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स बेटा. सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस कार्बोक्सिलेट आयन बेटा. दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द एसिड. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. अगर मैं सिंपल बात करूं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है दे आर गोइंग टू क्या, वीकन द एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है बेटा दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द एसिड. सो फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, अगर मैं सिंपल में बात करूं बेटा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, क्लियर, दे आर गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा हियर सम रिलेटिव स्ट्रेंथ्स इज गिवन ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा. तो मैं यहां दो ही ले रहा हूं अभी, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की. अगर आप के ए की वैल्यू देखें बेटा, इन दोनों में नाइट्रो बेंजोइक एसिड में 36 इंटू 10⁻⁵ है बेटा के ए की वैल्यू, जबकि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में कितनी है बेटा, 1.4 इंटू 10⁻⁵ है. अभी हमने कहा बेटा कि नाइट्रो ग्रुप्स जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो बेटा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा. तो दैट इज शोन हियर बाय द के ए वैल्यू बेटा. मोर इज द के ए वैल्यू बेटा, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. और अमीनो बेंजोइक एसिड बेटा, ये जो अमीनो ग्रुप है यहां ये क्या है आपका, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा. ठीक है, सो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा इसके बेंजोइक एसिड के जो भी आपका इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा, दैट इज बेंजोएट बनेगा. क्लियर. तो दिस अमीनो ग्रुप जो है दैट विल डिस्टेबलाइज दैट बेटा. दैट्स व्हाई it's your Ka की वैल्यू जो है आपकी that is very less as compared to that of your this nitrobenzoic acid beta. That's why it is less acidic in nature beta as compared to that of your nitrobenzoic acid. Clear? जैसे अभी देखें आप पिछली वाली स्लाइड में बेटा, अमीनो ग्रुप जो है टॉप पे है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, और जो नीचे है बेटा नाइट्रो ग्रुप. तभी मैंने इन दोनों को ही बोला, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं. नाइट्रो ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इज दैट क्लियर? सो तभी आपका क्या है, तो इन टर्म्स ऑफ के ए की वैल्यू में मैंने आपको बताया कि जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर पैरा बेंजोइक एसिड दैट इज 1.4 इंटू 10⁻⁵ बेटा. नाउ बेटा यहां क्या है बेटा, यहां अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ जिनके साथ आपके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं बेटा. क्लियर. सो अब बेटा जो आपका CF3 है इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है दैट इज मच मोर. क्लियर. एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रो ग्रुप बेटा, एंड देन साइनाइड, देन फ्लोराइड, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एंड देन फिनाइल बेटा. सो
जहां भी आपका COH के साथ CF3 होगा बेटा, दैट विल बी योर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर अगर फिनाइल ग्रुप है बेटा। इज दे क्लियर? सो अगर मैं वैसे यहां बात कर रहा हूं बेटा, फिनाइल है और CF3, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं अगर, क्लियर, तो लेट्स से कोई एक एसिड ये है, जैसे मान लिया CF3COOH, क्लियर, COH के साथ CF3 है और फिनाइल ग्रुप है बेटा, लेट्स से दिस फिनाइल ग्रुप हियर विद दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। सो सी बेटा, दिस इज हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन, क्योंकि आपकी एसिड स्ट्रेंथ जो है बेटा इस तरह इंक्रीज कर रही है। जहां CF3 है बेटा, दैट इज मोर एसिडिक देन CCl3 देन CHCl2 बेटा देन नाइट्रो। क्लियर? सो ये क्या है बेटा, यहां क्या है बेटा, ये जो F है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर? इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो यहां जो एसिटिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिए, सो दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन बेटा। तो CCl3COH के केस में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी वीक कम होगी बेटा। यहां 3 थे Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एटम्स जो है, यहां 3 है, यहां फिर 2 रह गए बेटा। क्लियर? तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी बेटा। अब यहां नाइट्रो ग्रुप यहां अटैच्ड है बेटा इन प्लेस ऑफ योर दिस क्लोरीन और फ्लोरीन बेटा। सो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होगी बेटा देन साइनाइड। तो ये बेटा थोड़ा याद रखें कि CF3 जहां भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर नाइट्रो देन साइनो देन फ्लोराइड देन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड देन फिनाइल बेटा। क्लियर? सो दिस वे योर जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है इन एसिड्स की दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बेटा। क्लियर? अब हम यहां अगर कंपेयर करें बेटा, अब यहां एक F है और एक Cl है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही चीजें जो यहां 3 के केस में की, यहां एक है। इज दैट क्लियर? सेम पोजीशन पे है क्लोरीन और फ्लोरीन बेटा। तो दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन, देन ब्रोमो, देन सिंपली ऑफ दिस मैथेनोइक एसिड। अब मैथेनोइक एसिड इज देयर, ओके, देन बेटा यहां क्या है, इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, क्लोरीन है, यहां भी एक क्लोरीन है। नाउ बेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन बेटा, दैट इज अल्फा कार्बन। क्लियर? अब अल्फा पोजीशन पे एक क्लोरीन है और यहां कहां है बेटा, बीटा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस अल्फा, दिस बीटा, बीटा पोजीशन पे मींस दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है दैट इज अवे फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। Clear? That's why it is less acidic as compared to that of your this one. This is more close to this carboxylic acid. Clear? So beta, this way we can explain the acidic behavior of different acids beta. तो competitive में इस तरह के questions आते हैं कि arrange the different carboxylic acid in order of their increasing or decreasing acidic strengths बेटा। और similarly बेटा यहां देखें benzoic acid है। Clear? This is a अगेन योर दिस C6H5CH2COH बेटा। ठीक है, तो आपका ये क्या है बेटा, नाउ दिस इज मोर एसिडिक बेटा, दिस फिनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस वन, लेकिन यहां जो फिनाइल ग्रुप है दैट इज अवे फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन। और इन दोनों को कंपेयर करें बेटा, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है। क्लियर? So, due to more inductive effect over here, so this will intensify the negative charge on this oxygen beta as compared to that of your this one. Clear? This alkyl group beta. This methyl, this ethyl beta. Clear? So this ethanoic acid is more acidic as compared to that of your this propionic acid beta. या you can say propionic acid तो बेटा कॉमन नेम हो गया और propanoic acid जो है आपका propanoic acid is the IUPAC name. Hope students this is clear now. Okay बेटा, मान लिया अब बेटा अगर हम देखें ऐसे ग्रुप्स बेटा, जैसे यहां क्या है, दिस बिनाइल ग्रुप हियर बेटा विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस C11OOH बेटा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? दिस बिनाइल ग्रुप बेटा, या फिर फिनाइल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो बेटा वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। जबकि अब मान ले ये जो आपका बिनाइल ग्रुप जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, दिस pi bond that is shifting to here and this pi electron they are shifting to this electronegative atom बेटा, because this carbonyl group is जो electron withdrawing in nature, तो यहां इसकी वजह से यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर? सो these are the different resonating structures of this
कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या होना चाहिए बेटा, वी एक्सपेक्ट कि आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस विनाइल ग्रुप बेटा। ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH है ना बेटा, दैट इज अ विनाइल ग्रुप, क्लियर। या फिर फिनाइल ग्रुप भी इसके जगह पे होता बेटा, तो दैट विल ऑल्सो बी मोर एसिडिक। और ये क्यों है, व्हाई इट इज देयर, इट इज ड्यू टू द बेटा, अगर इस कार्बन की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड, एक इसके और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहां, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp2। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेटा। तो sp2 मींस s करेक्टर इज मोर, जिसकी वजह से मोर द s करेक्टर बेटा, क्लियर। सो मोर इज its electronegativity. Electronegativity is going to increase. Is that clear? That's why it is more acidic as it is expected from the resonance. क्योंकि resonance की वजह से तो हम decrease expect कर रहे हैं बेटा, लेकिन इस acidic behavior is going to increase due to the presence of your this one, and that is due to the क्या increase in electronegativity of this carbon beta due to the sp2 hybridization. Is that clear? So beta, this is because of the greater electronegativity of sp2 hybridized carbon to which carbonyl carbon is attached. Hope students this is clear. Now बच्चों, अभी तक हमने जो डिस्कस किया बेटा कि जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ऑन द फिनाइल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, वो क्या करेंगे, आपके एसिडिक बिहेवियर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मींस एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे एसिडिटी को। दिस वी हैव डिस्कस्ड बेटा, आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा। सो दिस बेंजोइक एसिड ओवर हियर बेटा, क्लियर। इसकी अगर pKa की वैल्यू देखें बेटा, दैट इज 4.19। अब दिस इज नाइट्रोबेंजोइक एसिड बेटा, क्लियर। दिस नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अटैच, तो क्या करेगा, आपका एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो इसकी pKa की वैल्यू देखें, अब क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, दैट मस्ट बी लेस बेटा, बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस बेंजोइक एसिड। सो सी इट्स pKa की वैल्यू कितनी है, 3.41। इज दैट क्लियर? नाउ बेटा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अभी तक हमने सारी कहानी जो पढ़ी बेटा वो OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से थी सारी की सारी, ठीक है। अब COH क्लीवेज बेटा, क्लियर। अब बेटा इसमें क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ओके बेटा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम क्या करें बेटा, हीट करें विद द मिनरल एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन से ये इवन सल्फ्यूरिक एसिड यू नो दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा। P2O5 that is a phosphorus pentoxide, that is also your dehydrating agent बेटा। वो क्या देंगे, they will give you the corresponding anhydrides जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे इनकी प्रेजेंस में बेटा। So let's say this is a ethanoic acid here, this is another molecule of the ethanoic acid बेटा। जब हम इसको हीट करेंगे बेटा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में बेटा, क्लियर। तो यहां ये जो आपका OH है और यहां का H बेटा, ठीक है, it will lose this water molecule to give you this एनहाइड्राइड बेटा, एंड दैट इज 1 to 2 कार्बन एटम्स है ना यहां बेटा, ठीक है। तो देन इट्स इथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं बेटा, ओइक एनहाइड्राइड हम फिक्स लगाते हैं, और एक कार्बन 2 कार्बन तो इथ एन ओइक एनहाइड्राइड बेटा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर। सो दिस इज देयर बेटा। नाउ बेटा एस्टर सिंथेसिस बेटा, ये रिएक्शन आप 10th क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एस्टर्स हम क्या कर सकते हैं बेटा, एसिड से कैसे बनाएंगे, एसिड को जब हम ट्रीट करेंगे किसी भी अल्कोहल के साथ बेटा, लेट्स से RCOH इज रिएक्टिंग विद योर R'OH बेटा, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। ये क्या दे रहा है आपका RCO2R' बेटा, ठीक है, RCOOR' ये दे रहा है। सो दिस इज व्हाट एस्टर बेटा, क्लियर। सो दिस एस्टर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स बेटा, क्लियर। वो कैसे, दिसो RCOCl बेटा, दिसो सम एसिड क्लोराइड। अब R'OH के साथ इसको ट्रीट किया। एक्चुअली यहां ये जो आपका लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, क्लियर। अल्टीमेटली
इस क्लोरीन को ये बाहर कर देगा बेटा, और ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ हो, ये होगा बेटा। फिर इस सी के साथ ये ओ बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ क्या है, आर प्राइम। सो दिस इज गिविंग यू दिस आर सी ओ टू आर प्राइम एंड HCl आपका बाय प्रोडक्ट यहां बन रहा है बेटा। और फ्रॉम एस्टर्स दैट इज ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन बेटा। इसमें ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन में कैसे रहता है बेटा कि जैसे मान लीजिए एस्टर है आपका, क्लियर, RCO2 R प्राइम, इज दे क्लियर। इसको हमने क्या किया, डिफरेंट अल्कोहल का जिसमें अल्काइल ग्रुप आपका डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन बेटा, R डबल प्राइम OH के साथ हमने इसको ट्रीट किया। तो अब ये क्या कर रहा है, यहां भी ये जो आपका OR प्राइम है ना बेटा, दैट विल बी योर लिविंग ग्रुप ओवर हियर, क्लियर। सो ये O जो है दैट विल अटैक दिस कार्बन, और यहां से OR प्राइम बाहर, तो ये क्या दे देगा, RCO2 R डबल प्राइम देगा, और R प्राइम OH आपका अल्कोहल विल बी बाय प्रोडक्ट ओवर हियर, इज दैट क्लियर। नाउ बेटा एस्टर से जब हमने इसको क्या किया बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड्स के साथ ट्रीट किया बेटा, अगेन ये भी क्या दे रहा, दिस विल गिव यू दिस अल्कोक्साइड आयन बेटा। तो अल्कोक्साइड आयन कहां अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेटा, OR प्राइम यहां से बाहर, तो ये क्या दे रहा है आपका RCO2 R डबल प्राइम ये दिया, और RONA दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड आपका बाय प्रोडक्ट बन गया यहां बेटा, क्लियर। सो नाउ मैकेनिज्म ऑफ द एस्ट्रिफिकेशन क्या है, जो अभी मैंने बातें की बेटा, यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है बेटा इस स्लाइड को, सो होप यू विल एंजॉय बेटा। तो मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा। ना बेटा ये जो एस्ट्रिफिकेशन है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विद द अल्कोहल, दैट इज अ काइंड ऑफ क्या, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन बेटा। और वो कैसे, लेट्स सी बेटा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज सम कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, क्लियर। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम, क्लियर, प्रोटोनेशन करते हैं बेटा, ठीक है, ये जो आपकी कार्बोनाइल है ना बेटा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है यहां ये, क्लियर, ठीक है। इसकी अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं तो ये क्या करेगा बेटा, दिस विल एक्टिवेट दिस कार्बोनाइल ग्रुप टुवर्ड्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल बेटा। वो कैसे, अब इसकी प्रोटोनेशन की, क्लियर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बेटा, तो क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां इजीली अटैक कर लेगा बेटा, क्लियर। नाउ सी व्हाट विल हैपन अपॉन प्रोटोनेशन बेटा, सी दिस इज अ प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, सी दिस वन ओनली, क्लियर। इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन आया बेटा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव बेटा, क्लियर। अब बेटा अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां को शिफ्ट कर जाएगा बेटा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर। सो ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो प्रोटोनेशन हुई इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन की, वो क्या कर रहा है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल। नाउ दिस अल्कोहल जो है बेटा, दैट इज गोइंग टू अटैक ओवर हियर थ्रू दिस लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर बेटा, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये फैसिलिटेट, ये जो प्रोटोनेशन हुई इसकी ये फैसिलिटेट कर रहा है बेटा इसको, इज दैट क्लियर। सो यहां ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू हियर। सो नाउ बेटा अब सी आर, ये सी, ये OH बेटा, क्लियर, ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर गया, ये OH एज इट इज है यहां, जिसके साथ दो लोन पेयर ऑलरेडी हैं बेटा, और यहां ये O R यहां इसका, और ये H एज इट इज देयर बेटा, क्लियर। अब बेटा इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहां इसके साथ बॉन्ड बनाया बेटा, क्लियर। अब नाउ दिस इज योर व्हाट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब बेटा यहां इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या रहेगा, जो आपकी प्रोटॉन ट्रांसफर है, यहां ये H पॉजिटिव आयन जो है, ये कहां चला जाएगा बेटा, दैट विल कन्वर्ट द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इनटू द OH2 पॉजिटिव ग्रुप बेटा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने विड्रॉ कर लिया बेटा, क्योंकि इसकी एक तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन है यहां, क्लियर, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इट विल लूज दिस प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन कहां अटैक कर देगा, इस OH ग्रुप के ऊपर ये अटैक करेगा बेटा, और इस OH को कन्वर्ट कर देगा किसमें करेगा बेटा,
जब इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस O पॉजिटिव H2 बेटा. इज दैट क्लियर? नाउ जब इसकी प्रोटोनेशन हुई, क्लियर, सो वी कैन से दिस इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर. क्लियर? नाउ दिस O पॉजिटिव H2 जो है बेटा दैट इज अ लिविंग ग्रुप बेटा, बेटर लिविंग ग्रुप. नाउ दिस O पॉजिटिव H2 ग्रुप इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. तो इट मीन्स क्या होगा? दिस विल बी एलिमिनेटेड एज द वाटर मॉलिक्यूल बेटा. क्लियर? सो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये लोन पेयर यहां आ गया बेटा. क्लियर? सो दिस विल शिफ्ट टू हियर, दैट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड ओवर हियर, और ये आपका वाटर यहां से इसने रिमूव कर दिया, दैट इज HOH यहां से निकल गया बेटा. और ये हमें क्या दे दिया? दिस इज नाउ प्रोटोनेटेड एस्टर हियर. इज दैट क्लियर? दिस प्रोटोनेटेड एस्टर इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? So beta, this protonated ester so formed here that will lose the proton. ठीक है, ये प्रोटॉन को लूज करेगा so as to become stable बेटा. क्लियर? टू गिव द एस्टर. अब इसने इस प्रोटॉन को लूज किया बेटा. ठीक है, इस O और H के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल शिफ्ट टू दिस ऑक्शन. दैट्स व्हाई दिस ऑक्शन विल बिकम न्यूट्रल एंड इट विल लूज दिस प्रोटॉन बेटा. और आपको क्या दे दिया इसने? एस्टर दे दिया. नाउ this is the mechanism of this esterification reaction. Just so simple beta. Simply, first of all, protonation of this carboxylic acid beta. Is that clear? The means carbonyl oxygen की protonation हुई पहले, फिर जो protonated carboxylic acid है बेटा, that is going to facilitate the nucleophilic addition of the alcohol बेटा. और वो क्या देता है आपको? फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दे रहा है, और उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है? आपका प्रोटॉन ट्रांसफर दे रहा है बेटा. और वो आपको क्या दे रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर दे रहा है. तो आपका जो OH है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर O पॉजिटिव H2 बेटा. आफ्टर दैट, ठीक है बेटा, ये प्रोटोनेटेड एस्टर ये नहीं है, ये है प्रोटोनेटेड एस्टर. ठीक है, आफ्टर दैट बेटा दिस O पॉजिटिव H जो है 2 जो है बेटा दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. नाउ जब ये लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहा है तो H2O बाहर निकल जाएगा बेटा, और इट इज गोइंग टू गिव यू दिस प्रोटोनेटेड एस्टर ओवर हियर. सो this protonated ester will become stable beta after losing this proton to give this ester. So this is the mechanism of your esterification beta. Hope students this is clear. Now बच्चों, reactions with the PCl5, PCl3 and SOCl2 बेटा. अब बेटा सिंपल, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? एसिड क्लोराइड्स देंगे बेटा. सिंपल, क्लियर? और ये है बेटा RCOH PCl5 के साथ रिएक्शन बेटा. तो OH जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर दिस क्लोरीन बेटा. क्लियर? सो ये क्या देगा? RCOCl बेटा. ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ योर, ये दिस रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द अल्कोहल्स बेटा. अल्कोहल्स में भी जब आपने ट्रीट किए होंगे बेटा PCl5 या PCl3 के साथ, सेम प्रोडक्ट्स आपको मिले होंगे बेटा. क्लियर? बाय प्रोडक्ट आपको. सो उसी तरह तो ये भी आपके रिएक्शंस हैं बेटा. तो इसका मतलब क्या है? ये जो COH के जो रिएक्शंस हैं बेटा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के, दैट इज ड्यू टू योर दिस OH ग्रुप बेटा. ठीक है, सो RCOOH हियर इज गिविंग द RCOCl व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद द PCl5 बेटा. और आपको क्या दे रहा है? PCl3 बाई प्रोडक्ट दे रहा है और HCl बाई प्रोडक्ट दे रहा है बेटा. और उसी तरह बेटा PCl3 के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहा है? RCOCl एसिड क्लोराइड दे रहा है, और फॉस्फोरस एसिड इज द बाई प्रोडक्ट ओवर हियर. क्लियर? और बेटा SOCl2 के साथ, दैट इज थायनाइल क्लोराइड के साथ क्या देगा? ये दैट विल गिव यू दिस RCOCl एंड SO2 एंड HCl बेटा. एंड दिस इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर योर दीज एसिड क्लोराइड्स बेटा. क्यों? क्योंकि ये जो बाई प्रोडक्ट मिले बेटा दैट इज इन गैसेस फॉर्म बेटा. ठीक है, ये एस्केप कर जाएंगे एज इट इज बेटा. ठीक है, सो दैट इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर दीज एसिड क्लोराइड्स बेटा. ठीक है, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Clear? So hope students this is clear. Now beta reaction with ammonia. You know ammonia is a base बेटा, बेसिक इन नेचर है बेटा. ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या करेंगे? अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या देगा? पहले सॉल्ट दे देगा. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट देगा, दैट इज लेट्स से इथेनोइक एसिड, दैट इज अमोनियम एसिटेट इज देयर, अमोनियम इथेनोइट इज देयर. ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल बेटा. H2O यहां से निकल जाएगा. क्लियर? बचा क्या आपका? दैट विल गिव यू दिस सम अमाइड. इथेनामाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, जिसका कॉमन नेम क्या है बेटा? एसिटामाइड ओवर हियर. क्लियर? और IUPAC नेम क्या है इसका? इथेन अमाइड बेटा, इथेनामाइड.
होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर ना बेटा. दिस इज ऑफ बेंजोइक एसिड, अमोनिया के साथ हमने इसको ट्रीट किया बेटा, अमोनियम बेंजोएट दिया इसने, मीन्स सॉल्ट देगा पहले बेटा, फिर अपॉन हीटिंग दिस सॉल्ट बेटा इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या दे देगा बेंजामाइड, मीन्स अमाइड्स ये दे देंगे अपॉन हीटिंग बेटा. आफ्टर हीटिंग द सॉल्ट ऑफ दिस अमोनियम सॉल्ट जो भी होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा, अपॉन हीटिंग दे विल लूज दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दे विल गिव यू द अमाइड्स हियर. अब दूसरा बेटा दिस इज थैलिक एसिड हियर, ठीक है, थैलिक एसिड है, क्लियर. इसको अमोनिया के साथ हमने ट्रीट किया, क्या दिया इसने हमें, अमोनियम सॉल्ट दे दिया बेटा. अब हमने इसको हीट किया बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा, दिस अमोनियम थैलेट बेटा. और जब हम इसको हीट करेंगे अब, ठीक है, इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स, H2 एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया बेटा, ये क्या दिया इसने, थैलीमाइड दे दिया बेटा. इज दे क्लियर, दिस थैलामाइड रहा, नॉट थैलीमाइड बेटा. थैलीमाइड बनेगा अब जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो अमोनिया लूज करेगा बेटा, ठीक है. अपॉन हीटिंग बेटा इट विल लूज दिस अमोनिया और ये क्या दे देगा, NH2 इज देयर, यू नो, तो यहां से क्या होगा, NH2 एक H यहां से जाएगा बेटा, इज देयर क्लियर, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है दैट विल अटैक दिस कार्बोनाइल कार्बन बेटा, ठीक है. सो यहां से प्रोटॉन निकला, यहां से अमोनिया NH2 निकल जाएगा बेटा, तो आपका NH3 बाहर हो जाएगा और ये क्या दे देगा, दिस इज ऑफ थैलीमाइड नाउ, ठीक है, CONH, क्लियर, दिस इज ऑफ थैलीमाइड बेटा, दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. ना बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द COOH ग्रुप बेटा, क्लियर. अब COH ग्रुप की हमने जब रिडक्शन करनी है बेटा, क्लियर, तो हमें क्या देंगे बेटा. अब बेटा जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल्स मिलेंगे बेटा, ठीक है. जैसे यहां दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो बेटा, ठीक है. और जब हम इनके साथ या फिर डाइबोरिन के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे बेटा तो दे विल बी रिड्यूस टू द प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा, ठीक है. लेकिन जैसे आपके डाइबोरिन है दैट डज नॉट इजीली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर और नाइट्रो और हैलो फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर पाता बेटा, ठीक है. और लेकिन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस कर देगा टू द प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा, ठीक है. और जबकि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटा, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4 बेटा, ये भी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, क्लियर. जो आपका मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करने वाला, क्लियर. सो आप ये क्या है आपका दिसो RCOOH बेटा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन इथ्रियल मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बोरेन बेटा, डाइबोरेन के साथ जब हमने ट्रीट किया इसको तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या दे देगा हमें, अल्कोहल्स दे देंगे बेटा, ठीक है. दैट इज गिविंग यू दिस प्राइमरी अल्कोहल ओवर. तो सिंपली बेटा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बेटा जब ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड और कीटोन देता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं. और कौन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है. जैसे यहां भी हमने देखा, ठीक है, कि लिथियम है एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरिन तो आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, लेकिन NaBH4 जो वो नहीं कर रहा है, क्लियर. और डाइबोरिन जो है वो आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, लाइक यो एस्टर नाइट्रो हैलो, तो ये चीजें थोड़ा याद रखनी पड़ेगी बेटा ऑर्गेनिक में, क्लियर. सो लेकिन जनरल ट्रेंड जो है दैट इज यो कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में और उसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में. इससे उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी बेटा, क्या एल्डिहाइड्स देगा, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होगी, क्या देगा आपका, अल्कोहल दे देगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन किसके ऊपर, इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर. सो यहां बेटा RCOH upon reduction with this lithium aluminum hydride after this hydrolysis in the second step beta, that is going to give you the primary alcohol here. Now beta decarboxylation reaction, this is very important and easy reaction जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा बेटा decarboxylation reaction. सो इस पे ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए, तो दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने NaOH के साथ ट्रीट किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस CaO, इज दे क्लियर, दैट विल गिव यू दिस अल्केन बेटा. सो एंड सोडियम कार्बोनेट जो है दैट विल बी योर बाय प्रोडक्ट बेटा. ये जो आपका this is your decarboxylating agent beta, this is your decarboxylating agent, that is the soda lime, that is your NaOH and your CaO beta, that is in ratio 3:1, ठीक है.
और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो और यहां हम क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बन एटम भी कम हो रहे हैं बेटा, ठीक है। जो एल्केन बनेगा इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें एक कार्बन कम होगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, विच इज गोइंग एज योर कार्बोनेट बेटा, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, ठीक है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, यहां मैं रिएक्शन ही डायरेक्ट करूंगा, क्लियर। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा कि जो आपके सोडियम सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका एक्वा सॉल्यूशन हम लें, क्लियर, और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें बेटा, क्लियर। तो अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या दे देगा हमें, दैट विल गिव यू द एल्केन, और क्या देगा बेटा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस बेटा, और क्या देगा NaOH एज द बाई प्रोडक्ट बेटा। सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। सिंपली बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन दे रहे, लेकिन कैसा एल्केन दे रहे बेटा, जो इस RCOONA के साथ जो R है बेटा उसका डबल ले लें आप, ठीक है, RR, ठीक है। यहां मान लिया दिस इज सपोज सोडियम इथेनोइड, मीन्स यहां मिथाइल ग्रुप है, तो यहां एल्केन क्या बना, मिथाइल एक मिथाइल दूसरा, तो इथेन बन गया बेटा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बाय प्रोडक्ट, क्लियर। इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोलिस इसका बेटा मैकेनिज्म मैं करता हूं, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा बेटा, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका मैकेनिज्म के लिए बेटा, और इट्स वेरी इजी बेटा। ना बेटा या जैसे अभी कहा मैंने, दिस सोडियम इथेनोइड बेटा, ठीक है, वाटर की साथ बेटा एक्वा सॉल्यूशन इसका हमने लिया बेटा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, ये क्या दे देगा हमें, इथेन दे देगा, सिंपल, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट यही रहेंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका बेटा, NaOH हो गया, और आपका हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। नाउ दिस इज देयर अनदर रिएक्शन हियर बेटा, सोडियम इथेनोइड इज देयर, ठीक है, विद वाटर, दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस इथेन हियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH एंड योर हाइड्रोजन इज द बाई प्रोडक्ट हियर बेटा। लेकिन बेटा अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें बेटा, तो हमें क्या देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा बेटा, एंड दैट इज हियर इथीन विल बी फॉर्म्ड हियर बेटा, ठीक है। सिंपली इथीन विल बी द प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। एंड सेम वही बाय प्रोडक्ट वही रहेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, NaOH एंड योर हाइड्रोजन। और बेटा यहां अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मींस सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें, मींस यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर, सी देयर डबल बॉन्ड इज देयर, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, क्लियर। तो ये भी एक्वा सॉल्यूशन इसका हमने लिया बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की हमें क्या मिल गया, इथाइन मिल गया बेटा, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट आपके सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH एंड हाइड्रोजन। सो बेटा कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम इथेन भी बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं, इथाइन भी बना सकते हैं, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपका इथेन दे रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको इथीन दे रहा है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ योर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या दे रहा है, इथाइन दे रहा है बेटा, क्लियर। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट बेटा, अब हाइड्रोकार्बन पार्ट पे हम आ रहे हैं, क्लियर। दैट फर्स्ट रिएक्शन इज हालोजनेशन बेटा। अब बेटा ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, दे आर हैलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन बेटा। जब हम उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं या फिर ब्रोमीन के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेड फॉस्फोरस, और वो क्या दे देगा हमें, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, क्या दे देगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेटा दिस रिएक्शन इज सेड टू बी HBZ रिएक्शन और हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बेटा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन बेटा, you know with respect to this carboxylic acid, this is the first carbon, that is alpha carbon बेटा, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, देयर योर अल्फा हाइड्रोजन बेटा। इसकी लेस से हमने क्या किया बेटा, X2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस
रेड फॉस्फोरस बेटा ये X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये क्या देगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन इट विल रिप्लेस हियर बेटा बाय दिस X। क्लियर। सो दिस वाज अल्फा हालो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, और आपका X में भी हियर क्लोरीन और ब्रोमीन बेटा, इज दैट क्लियर। और HX will be a byproduct here, that is not written I think over here. Now बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बेटा जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे वो, क्लियर की, ठीक है, जिनमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दैट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, क्लियर, ये क्या करते हैं बेटा, डीएक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन को बेटा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक चीज याद रखें, दे विल नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लियर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इज डीएक्टिवेटिंग द कैटालिस्ट दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड दैट इज अ लुईस एसिड बेटा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यू नो, ठीक है, और दैट गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा, ठीक है ना बेटा। नाइट्रेशन रिएक्शन जो है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। सो दिस बेंजोइक एसिड, इसकी हमने नाइट्रेशन करनी है, लेट्स से दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड और प्लस नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेटा। ये दोनों क्या देंगे, नाइट्रोनियम आयन देंगे। अब बेटा जब हम इस नाइट्रोनियम आयन देंगे तो नाइट्रोनियम आयन क्या है, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब इनमें से एक पोजीशन ये है, इनमें से कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी भाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर, दैट इज अ मेटा पोजीशन। क्योंकि इसके जब आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां कोई चार्ज नहीं होगा मेटा पोजीशन पे। अगर मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दैट इज मोर एट द मेटा पोजीशन। सो नाइट्रोनियम आयन कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे बेटा, ठीक है, और वो हमें क्या देगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड यहां दे दिया, मींस दैट इज 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हियर, ठीक है, एंड दिस H2O इज द बाय प्रोडक्ट ओवर हियर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज योर नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, दैट इज अ नाइट्रेशन ऑफ योर दिस बेंजोइक एसिड। सो बेटा जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हमने बात की थी वो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, क्लियर, लेकिन दैट इज नॉट गिवन बाय द क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो देन योर ब्रोमिनेशन रिएक्शन बेटा। अब मान लिया आपका दिस बेंजोइक एसिड, इसकी हमने ब्रोमिनेशन करनी है बेटा, ब्रोमीन के साथ हमने इसको ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ योर दिस FeBr3 बेटा, ठीक है, दिस इज FeBr3 इज अगेन योर लुईस एसिड बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी, तो ये भी क्या देगा, ब्रोमोनियम आयन देगा, और ब्रोमोनियम आयन कहां अटैक करेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे ज्यादा है। सो दिस 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और आपका HBr विल बी बाय प्रोडक्ट बेटा। देन यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बेटा हम लास्ट में पहुंचने वाले हैं अब, क्लियर। सो मैथेनोइक एसिड जो है बेटा दैट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, क्लियर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है बेटा, डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है, एंड देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। जबकि आपका जो इथेनोइक एसिड है बेटा दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इट इज यूज्ड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री बेटा, इथेनोइक एसिड। देन हेक्सेन डायोइक एसिड बेटा दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस नायलॉन 6,6 बेटा, ठीक है। देन जो एस्टर्स हैं बेटा बेंजोइक एसिड्स के, दे आर यूज्ड इन द परफ्यूमरी इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। सो और ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है बेटा दैट इज यूज्ड, आई थिंक मैंने बीच में भी कहा होगा कभी जब इसका कोई रिएक्शन आया होगा, ये बना था आई थिंक कहीं, तब भी मैंने कहा होगा कि दैट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव बेटा। इसको जैसे पिकल हमने बनाना है, अचार बनाना है हमें, तो उसमें हम सोडियम बेंजोएट डालते हैं जस्ट टू प्रिजर्व द फूड, सो दैट फूड शुड नॉट बी क्या, ऑक्सीडाइज्ड। सो बेटा
और ये जो आपके हायर फैटी एसिड्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो बेटा विद दिस थैंक यू। ओके बेटा, अगर एंजॉय किया चैप्टर तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि फर्दर इन फ्यूचर मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उस लेक्चर को एंजॉय करें बेटा। सो बेटा सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस बेटा। विद दिस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।